Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market news. But do remember that we don't address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 2331 4444, 2342 1050 and 2331 0464. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan. नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताज़ा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेते हैं, साथ ही नजर डालते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों के चढ़ते उतरते ग्राफ पर। श्रोताओं, आज दिन शनिवार का है और आज का दिन आपके लिए ही तो है, क्योंकि आप चाहें तो सीधे टेलीफोन करके अर्थ जगत से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित, देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। और 3 टेलीफोन लाइंस हमने आपके लिए खोले हुए हैं। नंबर्स हैं 23 31 44 44, 23 42 10 50 और 23 310 464। किसी भी नंबर पर फोन करें, अपने सवाल पूछें। कंपनी स्पेसिफिक यानी कंपनी विशेष के बारे में हम बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन सेक्टर के बारे में आप जरूर पूछ सकते हैं और फिर कंपनी कहां आपको इन्वेस्ट करना है या किससे निकालना है, आप खुद से फैसला कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इकोनॉमिक एक्सपर्ट राजीव रंजन उपलब्ध। राजीव, बहुत बहुत स्वागत आपका। वेलकम राजीव। नमस्कार। एंड नाउ लेट्स बिगिन टुडेज एडिशन विद द हेडलाइंस इन इंग्लिश। Prime Minister Narendra Modi arrives in Argentina. PM to hold delegation-level talks to further strengthen partnership and open new avenues of cooperation between the two nations. Snapping 2 weeks of gains, domestic markets fall about 0.7% this week. And India negotiates trade deals on its own terms and will accept only when it is in national interest, says Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पूरी करने के बाद अर्जेंटीना पहुंचे। अर्जेंटीना के प्रधानमंत्री के साथ करेंगे प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता। दोनों देशों के बीच बढ़ेगा आपसी सहयोग। घरेलू शेयर बाजारों में इस सप्ताह 0.7% की गिरावट रही। सेंसेक्स 626 अंक गिरा तो निफ्टी 177 अंक टूटा। और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अपनी शर्तों पर ही किसी देश के साथ व्यापार समझौता करता है और उसे तभी स्वीकार किया जाता है जब वो राष्ट्र हित में हो। After concluding his successful visit to Trinidad and Tobago, Prime Minister Narendra Modi reached Argentina's capital, Buenos Aires, today on the third leg of his 5-nation tour that aims to reinforce India's engagements with Global South. Earlier, Prime Minister Modi held wide-ranging talks with his Trinidad and Tobago counterpart, Kamla Prasad Bisesar, at the iconic Red House in Port of Spain last evening. Following the talks, the two countries signed 6 agreements to enhance cooperation in several sectors, including infra and pharmaceuticals. In a special media post after the talks, Prime Minister Modi said the two countries have agreed to deepen economic ties and enhance cooperation in several areas. In Argentina, after a ceremonial welcome, the Prime Minister will hold delegation-level talks to further strengthen the strategic partnership and open new avenues of cooperation between the two countries. The visit is expected to further strengthen the strategic partnership and open new avenues of cooperation.
Key areas include trade and investment, health and pharmaceuticals, defense and security, infrastructure, mining and mineral resources, agriculture and food security, green energy, ICT and digital innovation, disaster management, science and technology, and education. The last meeting between Prime Minister Modi and Argentinian President Javier Milei took place in November last year on the sidelines of the G20 summit in Rio de Janeiro, Brazil. While the Prime Minister visited Argentina in 2018 to attend the G20 summit, this is the first bilateral visit to the country by the Indian Prime Minister in 57 years, making it a historic occasion. In his departure statement before embarking on the five-nation tour, Prime Minister described Argentina as a key economic partner in Latin America and a close collaborator within the G20 grouping. Following his visit to Argentina, Prime Minister Modi will travel to Brazil to participate in the BRICS summit in Rio before proceeding to Namibia, the final stop on his tour. We have Manish Shiva online with us, and he's our AIR correspondent connecting from Buenos Aires. How important are the Manish, the agreements that have been signed between the two countries? Hello. Yes. So the meeting is scheduled sometime from now. It is expected that a lot of discussions will focus on bilateral trade and investment. If you look at the traditional trade, मनीष, आपकी आवाज कट गई है शायद। हम मनीष के साथ फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि भारत और अर्जेंटीना के बीच किस तरीके से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद एक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, व्यापार और ट्रेड अपना बढ़ेगा। मनीष से फिर जुड़ने की कोशिश हम पैनल से करते हैं, लेकिन यही सवाल लेट्स डिस्कस विद राजीव। जी राजीव। देखिए, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत लगातार कोशिश कर रहा है अलग अलग देशों से, और खासतौर पे ग्लोबल साउथ पर जो भारत की नज़र है उसका एक खास महत्व है, क्योंकि विश्व में अलग अलग जो बड़ी महाशक्तियां हैं वो किस तरीके से सारी दुनिया में अपनी चौधराहट जमाना चाहती रही हैं, उसके एगेंस्ट कह लीजिए या एगेंस्ट न कह करके उसकी तुलना में कह लीजिए, भारत एक भाईचारे वाले रुख के साथ ग्लोबल साउथ में एक ऐसी प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है जिसे सभी लोग खुले दिल से स्वीकार कर रहे हैं। आमतौर पर जो दूसरे देशों का रवैया होता है, जो बड़ी महाशक्तियां कही जाती हैं दुनिया में, वो एक तरह से दबंगई या किसी तरह से आर्म ट्रस्टिंग वाले तरीके अपनाती हैं, जबकि भारत का रवैया बिल्कुल भाईचारे वाला और एकदम खुले दिल से दोस्ती वाला रहता है, जिसको ग्लोबल साउथ में बहुत सराहा जा रहा है और दिल से स्वागत किया जा रहा है इसका। ये बात हमने प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा में भी देखी है। So the Prime Minister is now will be traveling to BRICS summit in Rio de Janeiro, and from there he will go to Namibia. What are your expectations from the BRICS summit? देखिए, ब्रिक्स का उद्देश्य वैश्विक संतुलन बनाना, एक इस रूप में इसको देखना चाहिए। ब्रिक्स ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे गुट की प्रतिस्पर्धा में है, लेकिन वैश्विक संतुलन स्थापित करने में ब्रिक्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, और ये मुख्य रूप से आर्थिक मंच है, ये सामरिक मंच नहीं है, ये हमें याद रखना चाहिए। आर्थिक मोर्चे पर किसी एक खेमे का या किसी एक देश का प्रभुत्व जैसा हाल न रहे, इसको संतुलित करने में ब्रिक्स की एक प्रभावी भूमिका हो सकती है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि ब्रिक्स वहां तक पहुंचा नहीं है। अभी इस दिशा में कई नए प्रयास करने की जरूरत है। राजीव, बहुत सारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं और कॉलर्स आमतौर पर शेयर मार्केट या अर्थ जगत से संबंधित सवाल पूछते हैं, इसलिए सबसे पहले हम ये चर्चा कर लें कि इस सप्ताह शेयर मार्केट कैसा रहा। तो बता दें कि इस सप्ताह घरेलू शेयर बाजारों में पिछले 2 सप्ताह से जारी बढ़त पर ब्रेक लगी।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स जो है पूरे सप्ताह के दौरान 626 अंक गिरा और 83,433 पर बंद हुआ शुक्रवार को। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 177 अंक की गिरावट रही और ये 25,461 पर रहा। बाजार में पूरे सप्ताह उतार चढ़ाव बना रहा क्योंकि निवेशक अमेरिकी टैरिफ की समय सीमा को देखते हुए काफी सतर्कता के साथ कारोबार कर रहे थे। हालांकि विस्तारित बाजार में बीएसई स्मॉल कैप में 1% की बढ़त रही, जबकि मिड कैप 0.6% बढ़ा। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया लगातार दूसरे सप्ताह मजबूत हुआ। इस सप्ताह डॉलर के मुकाबले रुपए में 10 पैसे की बढ़त हुई। $1 की कीमत 85 रुपए 39 पैसे रही। We're joined in from Mumbai by Ratnakar, and he happens to be our first caller. Ratnakar, a warm welcome to Market Mantra. हेलो जी, please go ahead and ask your question. हाँ, गुड इवनिंग सर। Good evening. मेरा सवाल है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में कि जो हमने एक हमारा केस था 2011-12 का, तो उसमें हमने अपील भी किया, पर अभी तक वो अपील का हमें जवाब नहीं आया है। उसमें वो बोलते हैं कि फेसलेस ये होता है, फेसलेस उसका कार्रवाई होता है, इसलिए आपका नंबर कभी लगेगा मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन ये हमारा केस 2011-12 का है और अभी 14-15 साल हो गए, तो अभी ये अपील के लिए क्या करना पड़ेगा? थैंक यू। जी, देखिए इसमें सबसे पहले तो अपने वार्ड में संबंधित वार्ड का आप पता करें और वहाँ जाकर के संबंधित अधिकारी से एक बार मुलाकात करके बात करने की प्रयास करें, क्योंकि ये बात सही है कि अब सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन और फेसलेस की जा रही हैं, लेकिन आपका इतना पुराना मामला है और यदि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है तो आपको एक बार जाकर के व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने का प्रयास करना चाहिए। So, Rajiv, we were talking about the weekly Sensex, which we will discuss after we have taken this call from Gurgaon. Ram Prasad Verma is with us. A warm welcome. जी राम जी, पूछ लें अपने सवाल को। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, एक कोई एनआरआई है जो इंडिया से यूएसए में रह रहा है जी, वो यहाँ पे जो है एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जी क्या करना पड़ेगा सर? जी, इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ पर किसी भी निवेश सलाहकार से संपर्क करें, वो आपके लिए सारी व्यवस्थाएं कर सकते हैं, या फिर आप म्यूचुअल फंड की यूटिलिटीज़ हैं वहाँ पर आप जाकर रजिस्टर करें और वहाँ पर एनआरआई स्टेटस अपना बताएं। उसके हिसाब से जो भी कागजी कार्रवाई होगी या जो भी दस्तावेज वहाँ ऑनलाइन ही जमा करने होंगे, वो प्रक्रियाएं पूरी करके आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं अपने पसंद किए हुए फंड के अंदर। प्रीतम हमारे अगले कॉलर होंगे दिल्ली से। प्रीतम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछ लें। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी सर, जैसे हम रिटायरमेंट है हमारी और हम लमसम शेयर मार्केट में 5 लाख के करीब पैसा लगाना चाहते हैं, बाकी हमारा पेमेंट जो है एफडी में लगा हुआ है। क्या ये इकट्ठा लगाना ठीक रहेगा या हमें और कोई एफडी में इसको हम दोबारा लगा दें? जी प्रीतम जी, ये निर्भर करता है इस पर कि आपके पास कुल राशि कितनी है जिसको आप अपने रिटायरमेंट वाले फ्यूचर के लिए या रिटायर्ड लाइफ के लिए आप अपने बचा करके रखना चाहते हैं। सामान्य रूप से ये माना जाता है कि रिटायर्ड लाइफ में आपको अधिकतर पैसा जो फिक्स्ड इनकम यानी जैसा आपने कहा एफडी है, वहाँ पर उस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में लगा करके रखना चाहिए। लेकिन शेयर बाज़ार को भी आप पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान करे आपकी आयु लंबी हो। आजकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी वैसे ही काफ़ी अच्छी चल रही है, 80-90 साल लोगों का जीना बहुत सामान्य होता जा रहा है। तो रिटायरमेंट के बाद भी आपके पास 20-30 साल बल्कि कई बार उससे अधिक भी आपके पास समय रहता है। ये बात ज़रूर है कि उस रिटायर्ड लाइफ में आपके लिए शायद बहुत जिम्मेदारियां नहीं रहती हैं, जैसे आपकी 30 साल 40 साल 50 साल के बीच में जो जिम्मेदारियां रहती हैं, उन जिम्मेदारियों से आप मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि आपके बच्चे खुद सेटल हो जाते हैं, वो खुद अपनी ज़िंदगी चला रहे होते हैं। लेकिन फिर भी आपके सामने अपना जीवन रहता है। रिटायर्ड लाइफ में चिकित्सा के खर्चे, इलाज के खर्चे कई बार काफ़ी अचानक बड़ी राशि की ज़रूरत पड़ जाती है। ये सब बातें ध्यान में रखते हुए आपको एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत करनी लगती है, जो शायद 1 मिनट में आपको नहीं बताया जा सकेगा। लेकिन 5 लाख रुपए आपको शेयर बाज़ार में लगाने हैं, एक मुश्त लगाने हैं। मेरी सलाह रहेगी कि आप वो एक
टुकड़े में ना लगाएं, आप उसे 1-1 लाख रुपए करके 5 टुकड़ों में लगा दें, या आप अपने हिसाब से बांट सकते हैं। मूल बात यह है कि आपको टुकड़ों में पैसा लगाना है, और 5 लाख रखें या कम रखें, ये इस पर निर्भर करता है कि आपकी बाकी कैपिटल कितनी है। बाकी कैपिटल कितनी है, रिस्क एपेटाइट कितने सालों तक का है, और आमतौर पर चूंकि शेयर मार्केट साइक्लिकल बिहेव करता है, इसलिए अगर इनके पास कम से कम 5 साल तक का समय है कि पैसे थोड़े से कम होने की स्थिति में मार्केट में अगर वो शेयर कम हो जाए तो उसको आपको जरूरत नहीं पड़े। अगर 60 महीने का समय है आपके पास, यानी 5 साल का, तो आप जरूर मार्केट की ओर देख सकते हैं, बशर्ते ऐसा कि जैसा राजीव हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि आपके पास बाकी की धनराशि घर चलाने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए, तो मार्केट से आप एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। साथ ही चूंकि हम स्पेसिफिक कंपनी के बारे में बात नहीं करते, लेकिन हम सेक्टर के बारे में जरूर बताना चाहेंगे कि आप ये जरूर तय करें कि किस सेक्टर में लगाएंगे। और राजीव, कौन से सेक्टर ऐसे हैं जिसमें अगर 5 साल तक के लिए लगाना हो तो अभी एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है जिसमें भारत का बहुत जोर है, हम हर बजट में भी देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा थर्स्ट दिया गया है। आपको बहुत डाइवर्सिफाइड अप्रोच लेकर के चलने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया, वहाँ पर भारत की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं, क्षेत्र को काफ़ी आगे जाना है, डिफेंस की भी काफ़ी चर्चा है। लेकिन इन सब में समस्या क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको बहुत कंपनी स्पेसिफिक देखना पड़ता है, हर कंपनी की अपनी अलग समस्याएं हो सकती हैं जी। इसीलिए कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत प्रॉमिसिंग सेक्टर होने के बाद भी निवेशकों के लिए कई बार उतना फलदायी नहीं होता है। डिफेंस सेक्टर काफ़ी चर्चा हो चुकी है, काफ़ी महंगा हो चुका है, आपको वैल्यूएशंस और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इनको दोनों को मिला करके देखना पड़ेगा, कहाँ संभावनाएं बची है, कहाँ आपके लिए जूस बाकी बचा हुआ है। बैंकिंग सदाबहार क्षेत्र है, कंज्यूमर ओरिएंटेड सेक्टर्स पर काफ़ी लोगों की नज़र है, क्योंकि वो एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपको अगले 5-7 साल में बहुत चिंता करने की जरूरत है नहीं, चीजें अच्छी तरह से बढ़ती ही रहेंगी। एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच लेकर के चलिए, और अगर इतनी चिंता नहीं करनी है तो इंडेक्स फंड चुनिए और मस्त रहिए। SPS Jain from Greater Noida joins us now. A warm welcome, SPS Jain. नमस्कार जी। ये बताइए, कोई अगर व्यक्ति सुबह शेयर या ऑप्शंस खरीदता है, शाम को बेच देता है जब उसकी कीमत बढ़ती है, इज इट ए क्रिमिनल एक्टिविटी? इसके संदर्भ में जेन स्ट्रीट का मामला क्या है, इसको जरा बताएं। जी देखिए, ये बहुत ही लीगल एक्टिविटी है, आप सुबह खरीदें शाम को बेचें, आपकी इच्छा है, इसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। और ये किसी भी व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता है, वो बाकायदा एक ब्रोकिंग कंपनी के साथ डीमैट अकाउंट खोल करके इस गतिविधि को चला सकता है। इसमें कोई भी गैरकानूनी बात नहीं है, जब तक कि कुछ ऐसी प्रतिबंधित गतिविधियां जैसे आप इनसाइडर ट्रेडिंग करें, आपके पास या कोई फ्रंट रनिंग, इस तरह की चीज़ें होती हैं। आमतौर पर शायद एक खुदरा निवेशक के लिए वैसे मौके भी नहीं होते हैं। बिल्कुल, लेकिन इस मंच से हम अपने आम निवेशकों को हमेशा सुझाव देते हैं कि आप निवेशक हैं या ट्रेडर हैं, इसमें डिफरेंशिएट जरूर करें। अगर आप निवेशक हैं तो आपके पास एक लंबा टाइम पीरियड होना चाहिए। ट्रेडिंग करनी है आपको तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए अलग ट्रेनिंग लेनी होगी। मार्केट का ग्राफ कैसा है और उसमें तमाम चीजें हैं। यहाँ आम निवेशकों के लिए हम जरूर ये बताते हैं कि आप एक निवेशक बने, बेहतर निवेशक बने, एक अच्छे फंड का चुनाव कर सकते हैं, एक अच्छे किसी कंपनी के शेयर का चुनाव कर सकते हैं, और उसके लिए आप किस सेक्टर में आपको जाना चाहिए वो जरूर देखें। गौरव गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, बहुत बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछ लें। मार्केट मंत्र टीम, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, ये इंडिया में ओनली 2 to 3% पॉपुलेशन ऑफ टोटल इंडिया टैक्स पेयर्स आर एक्चुअली इनकम टैक्स पेयर्स जी। फाइलिंग रिटर्न इज अलग है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न बहुत कम लोग रिटर्न टैक्स कम लोग भरते हैं। हाउ टू एनकरेज दैट मोर एंड मोर पीपल पे टैक्सेस, अर्न हाई एंड पे टैक्सेस? क्या गवर्नमेंट इसमें कुछ करती है? जैसे IAS को हमने कभी लाइन में नहीं देखा, ड्राइविंग लाइसेंस की, पासपोर्ट की या वोटर ID की। कम से कम हाई टैक्स रिटर्न भरने वालों को ये सुविधा दे रही कि उनको फटाफट घर में आ जाए ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर वोटर ID या और कोई, बिकॉज हाई टैक्स पे करने से देश को फायदा है, और क्योंकि नेता और ब्यूरोक्रेट्स तो कभी लाइन में देखे नहीं हमने। हमें कम से कम उसका तो बेनिफिट दे जिसके पैसे पे लोग मजे लूट रहे हैं। थैंक यू सर। जी, मुझे नहीं लगता इसका बाजार से कोई संबंध है।
बिल्कुल इसका बाजार से संबंध नहीं है। और देखिए जो चीज़ इन्होंने बताई उस पर हम सीधे टिप्पणी तो इस मंच से नहीं करेंगे क्योंकि ये आर्थिक मंच है, मार्केट मंत्रा का मंच है। लेकिन जहां तक टैक्स पेयर की बात है, सरकार आप देखें पिछले 10-11 वर्षों से लगातार अपनी कोशिश में इजाफा किया गया है कि लोग टैक्स भरे, और टैक्स भरने वालों का दायरा बहुत बढ़ा है। ना सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस बल्कि अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी की भी बात करें तो हम देख रहे हैं कि हर महीने किस हिसाब से जीएसटी भी बढ़ रही है और टैक्स पे करने वालों का दायरा भी बढ़ा है। जी हर्ष जी, एक बात तो ये समझनी चाहिए कि सिर्फ आयकर देने वाले, इनकम टैक्स भरने वाले ही करदाता नहीं होते हैं। जैसा आपने जीएसटी कहा, जीएसटी तो हर व्यक्ति भरता है। आप कोई भी छोटा से छोटा सामान खरीदते हैं, अगर उस पर जीएसटी लगा है तो आप अप्रत्यक्ष तरीके से सरकार को कर भुगतान करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि सरकार क्या प्रयास करे जिससे लोग अधिक से अधिक कर दें। आयकर आप तब देंगे जब आपकी कर सीमा से अधिक आमदनी होगी। मतलब ये कि सरकार सिर्फ यही प्रयास कर सकती है कि लोगों की कमाई अधिक से अधिक बढ़े, और उसका सीधा तरीका है कि अर्थव्यवस्था की गति अच्छे से बढ़े, और सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार ने तो अब तोहफा भी दिया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो जॉब्स क्रिएट होगी उसमें पहले महीने की तनख्वाह अप टू 15,000 रुपये और हर महीने 3,000 उसके लिए दिया जाएगा, क्योंकि स्पेंड इकोनॉमी को भारत को अचीव करना है और तभी जाकर कहीं हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जल्दी से जल्दी बनेंगे और 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र भी। गुरुनाथ हमारे अगले कॉलर है, थाने महाराष्ट्र से जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत आपका गुरुनाथ जी। गुरुनाथ जी आपका स्वागत। क्या आप लाइन पर हैं? शायद नहीं, दोबारा कोशिश कर लें, चलना होगा। योगेश के पास दिल्ली से जुड़े हुए हैं। योगेश, मार्केट मंत्रा में स्वागत आपका। जी नमस्कार। नमस्कार, सवाल पूछ लें। सवाल ये है कि जब हम एक रिटेल निवेशक जब इन्वेस्ट करता है तो किस पॉइंट पे आकर के उसको कंट्रीज के लेवल पे डाइवर्सिफाई करना चाहिए, यानी कि किस पॉइंट पे आकर के उसको इंडिया से बाहर के मार्केट में एलोकेशन लेना चाहिए और कौन सी मार्केट ऐसे में प्रेफर करनी चाहिए? जी देखिए, इस समय मेरा अपना विचार तो यह है कि भारत के अंदर ही इतने ज़्यादा अवसर हैं कि आपको भारत से बाहर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन फिर भी यदि आपका कॉर्पस बड़ा है, एक सीमा से अधिक आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है, और वो हर किसी का अपना एक, मैं कोई पर्टिकुलर अमाउंट नहीं बोलना चाहूँगा कि इतने लाख या इतने करोड़ हों तो इसके बाद आप बाहर देखना शुरू कीजिए। वो हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। लेकिन ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी राशि इतनी बड़ी हो गई है कि आप सिर्फ भारत में निवेश करने के बदले बाहर भी सोचें, ये बात सही है कि बाहर भी अच्छे मौके बनते हैं। कई बार कई देशों में हम देखते हैं कि उनके बाज़ारों में काफ़ी तेज़ चाल दिखती है। मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, इस समय अमेरिकी बाज़ार अपने रिकॉर्ड स्तरों पर है, जबकि भारतीय बाज़ार अपने पिछले रिकॉर्ड के पास जाकर के अटकता हुआ रहा है। लेकिन अमेरिकी बाज़ारों में इस समय नए रिकॉर्ड बनते हुए दिख रहे हैं। नैस्डैक में नया रिकॉर्ड बन चुका है, S&P 500 में नया रिकॉर्ड बन चुका है। तो कई बार आपको ये लगेगा कि विदेशी बाज़ार खूब चल रहे हैं, हमारे बाज़ार में उतनी चाल नहीं है। ये एक पर्सपेक्टिव हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन कंट्रीज के लेवल पे भी होता है और एक अच्छी रणनीति है। लेकिन व्यक्तिगत मेरी राय है कि भारत के अंदर ही इतने मौके हैं कि आप रिसर्च करते करते थक जाएंगे, अवसरों की कमी नहीं होगी। बिल्कुल। P.K. Banerjee joins us from Gurugram. A warm welcome, Mr. Banerjee. हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे दो क्वेश्चन हैं जी। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर टेंशन वर्ल्ड में होती है तो उससे गोल्ड पे असर ये होता है कि रेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब ये गोल्ड हमारा कितना और नीचे आ सकता है? अब थोड़ी सी राहत की बात सुनने आ रही है। और दूसरा मेरा अहम सवाल ये है कि आज से 35-38 साल पहले हम लोग सुनते थे कि शेयर घोटाला, ये हर्षद मेहता का नाम जिक्र आया था, तो बड़े बड़े मगरमच्छ, ये ऐसा कौन सा घोटाले से हम बचे जो आप अभी राय दे रहे हैं? ऐसी चीजों से किस चीज से हम बचे कि वो उसकी सावधानी बरते शेयर खरीदने के टाइम? जी, अब पहली चीज इन्होंने क्या पूछी है? पहले तो घोटाले की बात करी है और गोल्ड की बात करी। गोल्ड की बात पूछी है इन्होंने। देखिए, ये बात सही है कि गोल्ड बहुत ही ज़्यादा लिंक्ड है जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के घटने या बढ़ने के साथ। और अभी ताज़ा उदाहरण हमने देखा है, ईरान इजराइल के बीच जैसे ही संघर्ष तेज हुआ, मतलब तो वहाँ पर तुरंत हमें सोने के भाव में तेज़ी देखने को मिली थी। और जैसे ही युद्ध विराम हुआ वैसे ही सोने के भाव वापस नरम हो गए। उसी
जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच में ही हमने देखा कि सोना भारतीय बाजार में पहली बार 1 लाख रुपए के ऊपर पहुंचा है 10 ग्राम की कीमत इसकी। तो जियोपॉलिटिक्स के साथ इसका सीधा संबंध है। अगर टेंशन बढ़ेंगे तो सोने के भाव बढ़ेंगे, सेफ हेवन डिमांड के रूप में इसे देखा जाता है। बट ही वाज होपिंग कि इसकी दर और कम आएगी। अब अभी कितनी कम हो सकती है ये हमेशा एक स्पेकुलेशन का विषय रहेगा, तो ये कहना बहुत मुश्किल है। आगे हमें नहीं मालूम कि जो पश्चिमी एशिया के बीच तनाव वापस कब कहाँ शुरू हो जाए। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल ही रहा है, बंद नहीं हुआ है, अभी तक थमा नहीं है, युद्ध विराम वहाँ नहीं हुआ है। तो जियोपॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कोई पहले से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, और इसका सोने पर असर कितना रहेगा इसका भी पहले से कोई आकलन नहीं किया जा सकता। लेकिन सोने के भाव जिस स्तर पर आ चुके हैं वहाँ से आपको सतर्क रहना पड़ेगा। आम धारणा ये होती है कि सोना मतलब सेफ है, सुरक्षित है, लेकिन वास्तव में वो एक बहुत ही वोलेटाइल कमोडिटी है। बीच बीच में अच्छे खासे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। में आप देखेंगे तो बहुत वोलेटाइल होगा, और लॉन्ग टर्म में भी वो आपको इन्फ्लेशन के बराबर रिटर्न देता है। जी बिल्कुल। गुरुनाथ जी एक बार फिर जुड़ चुके हैं थाने से। गुरुनाथ जी जल्दी से सवाल पूछ लें, समय कम है। गुरुनाथ जी फ्रॉम थाने। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते, सवाल पूछ लें प्लीज। जी सर, मेरा क्वेश्चन है सर, ये जैसे हमारे मार्केट में, शेयर मार्केट में तो इंटरनेशनल कुछ कंपनी अभी लिस्टेड होती है, तो सर इनका जो है मतलब इनका टैप रिकॉर्ड, बैलेंस शीट वगैरह के बारे में उतना मतलब साफ साफ कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो क्या इनके जो पोर्टल है, इनके वेबसाइट है, क्या मतलब इनका कोई टेक्निकल प्रॉब्लम रहता है? इनका एचओ तो बाहर रहता है। और मेरा दूसरा सवाल है, जो गिरावट मार्केट में देखी गई है हाल की, सर क्या आने वाले दिनों में मतलब मार्केट का क्या मिजाज रहेगा, थोड़ा बताइए। जी, पहली चीज, जहाँ तक विदेशी कंपनियां भी अगर भारतीय बाजार में लिस्ट होती हैं तो उन्हें उतनी ही कॉम्प्लायंसेज और उतनी ही डिस्क्लोजर्स सामने रखनी पड़ती हैं जितनी कि किसी भारतीय कंपनी को। और उन सब के आंकड़े आप एक्सचेंजों की वेबसाइट पर जाइए, कंपनी सर्च कीजिए, उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स, उनके सारे डिटेल्स, अगर कोई नया डेवलपमेंट उनके यहाँ होता है, उस सब की जानकारी उन्हें एक्सचेंजों को समय समय पर देते रहनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको उनके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़, अभी इन्होंने क्या पूछी, बाजार के आगे की चाल के बारे में। तो बाजार की चाल हमेशा अनिश्चित रहती है, हमेशा उतार चढ़ाव रहता है, कोई पक्की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। लेकिन यह उम्मीद की जा रही है कि यहाँ से आगे अगले कुछ 3-6 महीने में बाजार की चाल अच्छी रहनी चाहिए, सकारात्मक रुझान के साथ रहना चाहिए, क्योंकि हाल में जो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर भी हमें कहीं कुछ चिंताएं दिखी थी वो कम होती हुई दिख रही हैं, और वैश्विक चिंताएं भी कम हुई हैं। तो इसलिए बाजार अगले 3 से 6 महीने में शायद सकारात्मक रुझान पर ही रहेगा। Let's tell you our last headline story. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that India discusses trade deals on its own terms and never makes a trade deal based on a timeline. Talking to media in New Delhi about the trade deal with the United States, the minister said that a free trade agreement happens only when there is a mutual benefit. He added that the trade deal is only accepted by the country when it is fully matured and in national interest. Mr. Goyal also said that negotiations for agreements are underway with different countries, including the United States, Europe, and New Zealand. So, what are your expectations for the next week? Next week, let's hope good. नहीं, किन चीजों पर मार्केट ज्यादा ये रह सकता है? ट्रेड टैरिफ की जो बात करें, देखिए टैरिफ को लेकर के किसी भी दिन कोई भी खबर आ सकती है, तो उस हिसाब से मार्केट बिहेव कर सकता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, वक्त अब खत्म हो रहा है। राजीव आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Rajiv, for being with us. And before we close, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Argentina. PM to hold delegation-level talks to further strengthen partnership and open new avenues of cooperation between the two nations. Snapping 2 weeks of gains, domestic markets fall about 0.7% this week. And India negotiates trade deals on its own terms
and will accept only when it is in national interest, says Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. नमस्कार.